નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની। બિલકુલ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પાછલી કેટલા સમયથી ખૂબ જ મંદીના મારને ઝેલી રહ્યું છે। હાલ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનો જે ટોટલ બિઝનેસ છે એના 30થી 40% બિઝનેસ ઓછો થઈ રહ્યો છે, જેને કારણે વેપારીઓની સાથે સાથે ઉદ્યોગકારો પણ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે। પ્રોડક્શન ઓછું થઈ રહ્યું છે અને વેપારની અંદર જે સ્ટોક છે એ ક્લિયર કરવાની ચિંતામાં વેપારીઓ હાલ અત્યારે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે। આ વિશે એક વિશેષ અહેવાલ જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે આગળની ચર્ચા કરીશું। અત્યાર સુધી મંદીની માર ખાઈ રહેલા કપડા ઉદ્યોગ હવે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો થકી 500 થી 700 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ થાય તેવી વકી છે। આડી એટલે કે સીઝન તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં થાય છે। દક્ષિણ ભારતમાં આડીનો અર્થ સેલ થાય છે। જૂન જુલાઈમાં સેલની સીઝન હોય છે। મેના અંતિમ 10 દિવસોમાં વેપાર ઓછો રહે છે, પરંતુ 120 થી 125 ટ્રક કાપડ મોકલવામાં આવ્યું છે। જો કે આ વર્ષે એક અઠવાડિયા પૂર્વે કાપડ વેપાર 30 થી 40% ડાઉન રહ્યો છે। અઠવાડિયાથી સુસ્તી છે। ગત વર્ષે આ સમયે 125 ટ્રક મોકલાતી હતી, જે હાલ 70 થઈ ગઈ છે। आगामी दिवसों में स्थिति वधु बगड़शे एवी स्थिति दिखाई रही है। इस बार की अड़ी सीजन में व्यापारी क्या कर रहा है कि वही माल ले जा रहा है जो वहां बिक रहा है, तो उसमें व्यापारी को यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लेकिन व्यापारी के यहाँ ज्यादा स्टॉक होने की वजह से व्यापारी उस माल को निकालने में लगा है ताकि आने वाली सीजन की तैयारी कर सके। रही बात अगर व्यापार की बात करनी जाए तो दिवाली से लेकर अभी तक जो भी सीजन थी वो लगभग फैल गई। चाहे दीपावली है वो 30% कमजोर रही, पोंगल की सीजन कमजोर रही, रमजान की कमजोर रही, आखादीज की कमजोर रही और शादी ब्याह की सीजन भी कमजोर रही। तो अब हमें ये 2 महीना है, कोई सीजन नहीं रहती है, लेकिन आड़ी बोल के 1500 करोड़ का व्यापार होता है। ये व्यापारी यहाँ पर जो अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक है वो क्लियर कर लेंगे। और रही बात उसके बाद वो पैसा आएगा, उस पैसे से वो आगामी सीजन की तैयारी जैसे राखी है, तीज है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली की वो तैयारी करेंगे। दक्षिणी मार्केट में मूवमेंट देखाई रही है, परंतु दिवाળી થી અત્યાર સુધીના વેપારને જોતા આડીમાં સારો વેપાર થવાની આશા ઓછી છે। હંમેશા એવું કહેવાય છે કે રોટી, કપડા और મકાન દરેક વ્યક્તિની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, પરંતુ બદલાતા જતા રહેણી કહેણી સામે હવે કપડાનું સ્થાન મોબાઈલે લઈ લીધું છે અને લોકો કપડા પાછળ ઓછા અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ પાછળ વધુ નાણાં ખર્ચી રહ્યા છે। એવામાં કાપડ ઉદ્યોગને પારાવાર મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે। તો આપણે જોયું કે કઈ રીતે કપડા ઉદ્યોગમાં હાલ મંદીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે। કેટલી ટ્રકો રોજની ટ્રાન્સપોર્ટેશન થતી હતી, લગભગ 125 થી વધુ ટ્રકો જે રોજાના અહીંથી ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર મોકલવામાં આવતી હતી, જે હાલ ઘટીને લગભગ 60 થી 70 જ થઈ ગઈ છે, જેને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ પણ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે। हाल जे कई पण सीजन चाली रही है ए दक्षिण भारतनी अंदर आवनारा 2 महीना सुधी चालनारा सेलनी सीजन कहेवामां आवे छे, परंतु त्यां पण मांग खूब ज ओछी होवाने कारणे हाल जे माल जवो जोईए एटलो माल उपाड़ थतो नथी अने एने कारणे जे सीजननी राह जोईने वेपारीओ बैठा हता एमां पण हाल अत्यारे पूरतुं वळतर नथी देखाई रह्युं। આપણી સાથે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગના જે અધ્યક્ષ છે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના યુવરાજભાઈ દેસલે જોડાઈ રહ્યા છે। આપણે યુવરાજભાઈ સાથે વાત કરીએ કે કઈ રીતની સ્થિતિ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની, જે માલ કપડા બજારમાંથી ઉપાડીને દેશના અન્ય વિભાગોમાં મોકલવામાં આવે છે। યુવરાજભાઈ, જે રીતે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની અંદર પહેલા જે પ્રકારે સિઝનલ બિઝનેસ થતો હતો, અત્યારે શું સ્થિતિ છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ પર એની કઈ રીતની અસર પડી છે? सर आमा एक्चुअल में एवं है कि दर वर्षे अमारो जो मेन सीजन हो डिसेम्बर थी मांडी तमारो मे महीना सुधी अथवा जून नो पहला वीक सुधी होय छे अने दर वर्षे मतलब में लगभग हवे आ तमारो जे युवराजभाई अवाज आवे छे मारो तमारे? हाँ आवे छे। तो जे व्यापार छे ए धीमे धीमे मतलब में ओछो थतो जाय छे एवुं अमने लागे छे। बाकी अमे અહીંયા સુરતથી જે ડિસ્પેચિંગ થતી હતી, એક સમય એવો હતો કે 400 થી 500 ટ્રકની ડિસ્પેચિંગ
હાઈએસ્ટ મતલબમાં માર્ચ એપ્રિલ અને મઈમાં થતું હતું. આ વર્ષે લગભગ ગયા વર્ષ કરતા 20% વેપાર મતલબમાં ઓછો થયો છે. લગભગ અમારે અહીંયા લગભગ 200 ટ્રક સુધીનો માલ ડિસ્પેચિંગ થયો છે. 200 ટ્રક થી ઉપર ગયો જ નથી. આજની એક અઠવાડિયા 10 દિવસથી એકદમ ડાઉન થઈ ગયું છે માર્કેટ, અને હજી ડાઉન થવાની શક્યતા છે. એટલે લગભગ હમણાં 70 થી 75 ટ્રક મતલબમાં માલ માત્ર ને માત્ર જાય છે, અને આવનારા દિવસોમાં અમને એવું લાગે છે કે 50 ટ્રક સુધી આ વીકમાં રહેશે એવું લાગે છે. હવે સીધા તમારા 1.5-2 મહિના એવા રહેશે કે એ મંદિરો અસર રહેશે. અને બીજી વસ્તુ, કેમ કે આવા જ સમયે ત્યાંથી જે સુરતની પાર્ટીઓ ત્યાં ડિમાન્ડ કરે છે પૈસા માટે, એ ત્યાંથી પછી રિટર્ન માલ મોકલાવવામાં આવે છે. તો હમુમન અમારી પાસે જનરલી 7 થી 8 ગાડીનો અથવા 10 ગાડીનો મતલબમાં ડિસ્પેચિંગ ત્યાંથી રિટર્ન માલ આવે છે, જે કટેલો હોય, ફાટેલો હોય, અથવા પેમેન્ટ માટે કોઈ પૈસા માંગતા હોય વેપારી તો પાછો આવે છે. હવે એ સંખ્યા વધી જશે. લગભગ મને એવું લાગે છે જૂન જુલાઈ સુધી લગભગ રોજની 25 ટ્રક થી 30 ટ્રક જેવો મતલબ માલ રિટર્ન આવશે. એટલે 25 અગર આપણે બે એટલે 5000 પાર્સલ જેવા મતલબ રોજના રિટર્ન આવશે એવી અમને સંભાવના, આશા અમે વ્યક્ત કરી છે. જી બિલકુલ યુવરાજભાઈ, જે રીતની સ્થિતિ તમે જોઈ રહ્યા છો, પાછલી દિવાળીની જે સિઝન ગઈ એ પણ ખૂબ જ ખરાબ ગઈ. લગ્નની સિઝનમાં પણ ઘણો ફરક દેખાયો હતો, અને ત્યારબાદ જે અત્યારે આપણે પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ એ પણ ખૂબ જ વિકટ પરિસ્થિતિ દેખાય છે. એનાથી ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગને કેટલું નુકસાન, અને જે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ ઉપર નભતા જે લેબર હોય છે અને જે ડ્રાઈવર અને જે રીતની ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, કારણ કે ટ્રકોના બેંક ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી લઈને ઘણી બધી રીતની નુકસાની જે થાય છે, જેને કારણે આ બધી વસ્તુ ઉપર એની કઈ રીતની અસરો પડશે? બિલકુલ અસર પડે છે સાહેબ, કેમ કે જો અમારો એક રોટેશન હોય છે ટ્રકોનો કે અહીંયાથી અમારો કાપડ પાર્સલ લઈને જશે, ત્યાંથી રિટર્ન માલ લઈને આવશે. હવે એ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. મારી પાસે લગભગ 5 દિવસથી 2-3 ટ્રક ઊભી છે. હવે એની માટે જેમ જેમ એનો નંબર આવશે એટલે 5 દિવસ પછી 4 દિવસ પછી નંબર આવશે તો જ લોડિંગ થઈને જવાની છે. તો એવામાં આપને ખબર જ છે કે બધી ગાડીઓ લગભગ ફાઇનાન્શિયલ જ હોય છે, કઈ ગાડીઓ ફ્રી નથી હોતી. કેમ કે આજની તારીખમાં તો 45 લાખ, 40 લાખ, 35 લાખ જેવી એક ટ્રકની કિંમત થઈ ગઈ છે. એવામાં પ્રતિદિન મતલબમાં 3000 રૂપિયા લેખે ટ્રકનો મતલબમાં ઈએમઆઈ હોય કે ખર્ચો, ટ્રકના પેપર્સ ટાયરની સાથે લાગે છે. એટલે બહુ નુકસાન કહેવાય. મતલબમાં આવા 2 મહિના અને 1.5-2 મહિના કાઢવા અમારા માટે બહુ જ કપરા હોય છે, અને ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીને ખાસું નુકસાન હોય. કેમ કે અમે એવું છે, જે ટ્રકો કાપડ પાર્સલમાં ચલાવીએ છીએ એ બીજી જગ્યાએ માલ અમને પછી કોઈ આપતો નથી. મતલબમાં એનાથી નુકસાન કરવું. મતલબ બિલકુલ બિલકુલ. આપણી સાથે મનોજભાઈ અગ્રવાલ બી જોડાઈ રહ્યા છે, અને એમની સાથે પણ આપણે વાત કરીએ. કપડા ઉદ્યોગના ખૂબ જ જાણીતા અને મોટા વ્યાપારી ઉદ્યોગપતિ છે. મનોજભાઈ, જે રીતની સ્થિતિ હાલ અત્યારે દેખાઈ રહી છે, આવનારા દિવસમાં કઈ પ્રકારનું वातावरण તમે જોઈ રહ્યા છો કાપડ इंडस्ट्री માટે? देखिए, सूरत की कापड़ इंडस्ट्री हमेशा मंदी के दौर से भी गुजरती है, तेजी भी आती है. इस बार क्या कुछ स्पेशल थोड़ी ज्यादा मंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरत का कपड़ा उद्योग इसके चलते कोई ज्यादा प्रभावित होगा. सूरत की इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करने वाली है. आज अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पीएम मित्र पार्क जो है सूरत को मिला है, तो उसमें भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली है. अभी भी अगर यहाँ मार्केट कम बन रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री प्लॉट खूब कट रहे हैं, तो उसमें भी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है. निश्चित तौर पे सूरत का भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये साल में कभी 2 महीने मंदी तेजी का जो है दौर चलता रहता है. जिस टाइम में मंदी होती है तो व्यापारियों को मंदी लगती है, लेकिन आने वाला भविष्य में कोई भी हमारे को संशय नहीं है कि सूरत का कपड़ा उद्योग को बहुत सोचने वाली बात है. सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि अपना फैशन चेंज हो रहा है. अभी जो कपड़े में जो हम लोग सूरत की जो साड़ियों के लिए फेमस थे, तो अभी हमको इसमें गारमेंट के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा. गारमेंट के ऊपर हमको जो फेमस करने के लिए यहाँ की क्वालिटी को मेंटेन करना है, यहाँ के नए फैशन के तरीके से गारमेंट के ऊपर कन्वर्ट होने के ऊपर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा. यंग जनरेशन है सूरत की, और आने वाले समय में जो गारमेंट में कन्वर्ट होने वाले हैं, और अभी काफी लोग जो है इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं. अभी अगर आप कहीं पे देखोगे, खूब सिलाई मशीनें वगैरह यहाँ पे जो लग रही है, टोटल स्टिचिंग का काम यहाँ पे होने लग गया है.
और साड़ियों की डिमांड कम हो रही है। और अब ये वर्तमान में जो मंदी है ये बहुत वर्षों के बाद देखने को मिली है। इतनी मंदी तो हमारे कोविड के बाद भी महसूस नहीं की, जीएसटी के बाद भी हमने महसूस नहीं की। ये कुछ एक तो क्या लोगों को महंगाई मार रही है, तो उसके चलते एक फैशन चेंज हो रहा है, उसके चलते एक ऑनलाइन बिजनेस खूब बढ़ गया है, तो वो चीज जो है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सूरत का कपड़ा व्यापार को सोचने वाली बात है। सोचना ये है कि सिर्फ अपने को जिस हिसाब से फैशन चेंज हो रहा है उसके हिसाब से फैशन चेंज के ऊपर हमको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी जिस तरह से फैशन अपग्रेड हो रहा है और जो यंगस्टर्स के अंदर जो फैशन का ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को समझकर इंडस्ट्री को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा और जो पुरानी पद्धति से काम हो रहा था उसको चेंज करके नई फैशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से अभी जीन्स और जो ड्रेस वगैरह की डिमांड और इंडिया में बढ़ रही है, साड़ियों का जो चलन है वो कम होता जा रहा है, तो आप क्या मान रहे हैं कि साड़ियों का जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर हो रहा है उसको घटाकर ये बाकी जो फैशन इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग हमको अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, और खास करके जो आप बोल रहे हो स्टिचिंग का काम बहुत जल्दी से बढ़ रहा है तो उस पर भी फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? यहाँ पे ने चेंज कर दिया है और जो यंग जनरेशन आ रही है, आप यहाँ पे अगर एक एक जो स्टिचिंग के यूनिट है, जो जिस हिसाब से यहाँ पे कुर्ती गारमेंट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप खुद सोच भी नहीं पाओगे इस टाइप का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये आने वाले 5 साल में जैसे सूरत को साड़ियों के हिसाब से लोग जानते हैं, वैसे आने वाले समय में गारमेंट के हिसाब से जानेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि भी आप यहाँ पे लहंगे की बात करिए। आज से 5 साल पहले सूरत में एक लहंगा नहीं बनता था। आज जो दुल्हन तैयार हो रही है उसमें 100% अगर बोलूं तो कोई नहीं लगेगा सूरत का लहंगा पहनती है। तो ये ग्रोथ लहंगा का यहाँ पे जो सूरत में बढ़ा, उसी हिसाब से आने वाले समय में अगर आप कोई भी गारमेंट के ऊपर देखेंगे तो उसमें सूरत की मैं कहता हूँ कि छाप लग जाएगी 5 साल के अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि सूरत की जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और अगर इस इंडस्ट्री को समय के साथ बदला नहीं गया तो फिर इंडस्ट्री पर दिक्कत आ सकती है। मैं मनोज भाई आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एक्सपोर्ट के फिगर्स हमारे यहाँ से कम हुए हैं, इस साल जो गारमेंट एक्सपोर्ट के जो फिगर है उसमें काफी कमी आई है, उसके लिए आप क्या जिम्मेदार मानते हो, किसको जिम्मेदार मानते हो? देखिए इसमें क्या, जो पुराने गारमेंट का जो एक्सपोर्ट करते थे और अभी क्या यंग जनरेशन करना चाहती है, लेकिन उसको जिस हिसाब का सेटअप सरकार की तरफ से जिस हिसाब से सहूलियत चाहिए, हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत एक ही चीज आ रही है कि भी पैसे की। अगर हम गारमेंट में कहीं पे भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस पैसे की जो है हमारे को वो समस्या रहती है कि पैसा कैसे आएगा। एक्सपोर्टर माल तो काफी ले लेंगे लेकिन उनको डर बना रहता है। इसके ऊपर कुछ एक पॉलिसी अगर इस हिसाब से हम लोग भी कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि भाई कोई इस टाइप का, जैसा चैम्बर ने भी पहले बांग्लादेश में एक ऑफिस खोला, या भी दुबई में भी एक उन्होंने सेमिनार किया, अमेरिका में भी किया, इस टाइप का जिस हिसाब से भविष्य बन रहा है। और गारमेंट में यहाँ पे जो क्वालिटियाँ सुधर रही है, यहाँ पे मेन है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी अपने यहाँ पे सूरत में क्या क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्वालिटी के ऊपर नहीं दिया। लेकिन आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो उस चीज के ऊपर अभी व्यापारी लगे हैं, तो आने वाला समय में एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ने वाला है सूरत का। जी बिल्कुल मनोज भाई, क्वालिटी तो हमेशा अव्वल होनी चाहिए। जब हमको विदेश में जाके अपना माल प्रोडक्ट हमको बेचना है तो विदेश के कंपैरिजन में हमारे पास इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कि जो फॉरेन के जो ग्राहक है वो उसे पसंद करे और खरीदे। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर डेनिम का डिमांड पिछले कई समय से बढ़ रहा है, और डेनिम की भी जो डिमांड बढ़ती है, तो हमारे यहाँ पहले डेनिम बनता नहीं था लेकिन अब बनना शुरू हो गया है, और अभी उसका स्टिचिंग वगैरह का काम भी सूरत में शुरू हो चुका है। तो उसके लिए कैसा आप देख रहे हैं, आगे आने वाला समय माहौल कैसा रहेगा डेनिम को लेकर के इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट और विदेशी मार्केटों में?
डेनिम के प्रोडक्ट की बात करो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउथ गुजरात की अगर सबसे ज्यादा, अगर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डेनिम का जो है साउथ गुजरात से हो रहा है, और यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी बन नहीं रही है। और मैं ये आपको एक ये मान के चलना कि अगर जींस में अगर डेनिम के जो कर रहे हो तो टोटल का प्रोडक्शन ही ये इधर से हो जाएगा। और भी मशीनें यहाँ पे डेनिम की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, और मेन हब हो गया है साउथ गुजरात डेनिम का। आने वाले समय में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना कितना % शेयर रहेगा डेनिम को लेकर के, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन है वो अब हमारे यहाँ से शुरू हो जाएगा डेनिम का, स्टिचिंग का, और एक्सपोर्ट भी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर होने की तैयारी हो रही है। तो क्या क्या मार्केट शेयर रहेगा? मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन जितना भी बन रहा है, आज सूरत की अगर आप साड़ियों की बात करो, सूरत का प्रोडक्शन की बात करो, मंदी तेजी आपको नजर ऐसे आती है, लेकिन सूरत में प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है। जो पुरानी फटफटिया मशीनें थी वो भी चल रही है, और काफी नई मशीनें आ गई। एक आप पहले एम्ब्रॉयडरी आई 1.25 लाख 1.5 लाख एम्ब्रॉयडरी थी, आज उससे ज्यादा जो है ना रेपियर जेकार्ड की मशीनें आ गई। सूरत का ग्रोथ कहीं पे भी नहीं दब रहा है। ये मंदी तेजी, ये तो लगन सारा की ग्राहकी के हिसाब से और के हिसाब से होता है। बाकी बिजनेस के हिसाब से सूरत में कोई कमी नहीं है। अपनी मानसिकता होनी चाहिए कि भी कितना मेरे को बिजनेस करना, किस सेटअप पे करना, उस चीज में आप जा सकते हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ युवराज भाई भी जुड़े हुए हैं। युवराज भाई, क्या माहौल देख सकते हो आप आने वाले समय में? जैसे मनोज भाई बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या मान रहे हो कि अभी की जो मंदी का माहौल है उसको कैसे गुजार सकोगे और आने वाले समय के लिए कैसे आपकी तैयारी है? देखिए क्या है कि हर बार ऐसा लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए कभी भी, और हम लोग भी पॉजिटिव ही है कि भाई व्यापार अगले साल फिर अच्छे से अच्छा होगा। मतलब ये हमारी हमेशा ये रहती है। जैसे भी जो फेस्टिवल आएंगे तो उस हिसाब से हमको उसका अनुमान लग जाता है। सीजन के ऊपर जैसे बारिश का भी अनुमान है। बरसात अगर अच्छी और टाइमली अगर होगी तो उसका भी असर, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आज एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत सारा मतलब में खेल चलता है, वो अगर एग्रीकल्चर में अगर बारिश अच्छी रहेगी तो मैं समझता हूँ सीजन अच्छा चलेगा, क्योंकि व्यापारी उसी हिसाब से परचेजिंग करता है। क्योंकि व्यापारियों को लगता है कि जो रिटेलर कस्टमर है वो आएंगे हमारे पास में, और हम उम्मीद करते हैं ये खाली रक्षाबंधन से, जैसे 15 जुलाई के बाद में हमारे जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, उसमें डिस्पैचिंग शुरू हो जाती है। 15 जून के बाद में भी हो जाती है और 15 जुलाई तक चलती रहती है आगे तक। तो पूरा दुर्गा पूजा का जितना फेस्टिवल होता है वहाँ कपड़ा जाता रहता है। आप डेनिम की बात की तो मैं इतना ये कहूंगा आपको कि नवसारी में जो मफतलाल ग्रुप है उनका अभी नाम चेंज हो गया है। यूनिट उनका वही है, मफतलाल बर्निंग ग्रुप है। लेकिन हाँ, वहां से भी मतलब डेनिम का काफी मतलब माल जाता है। हमारे ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां आप देखते हैं मिलिट्री में, उसमें भी काफी कपड़ा जाता रहता है, और कोलकाता जाता रहता है, दिल्ली जाता रहता है, चेन्नई जाता रहता है। तो वो भी मैंने देखा हूँ। मतलब बाकी यहाँ का डेनिम का तो जो हमारे मित्र व्यापारी है मनोज जी, ये आपको ज्यादा अवगत करवाएंगे। लेकिन हमें चाहेंगे कि अच्छी इस साल मतलब में अच्छा व्यापार चले, ये हमारी उम्मीद है। बाकी जो तैयारियां है हमारे हिसाब से, हम लोग जो हमारे ट्रक्स है ये है, हम तो करके रखते ही है, और उसको हमको अंदेशा भी होता है। ऐसे दिनों में क्या है, गाड़ियों का जो डिटेंशन हो जाती है, गाड़ियां खड़ी रह जाती है, वो थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा सरदर्द वाला मामला होता है। क्योंकि क्या होता है, हर गाड़ियों का अपना अपना ये होता है। क्योंकि अभी हम लोग FTL में नहीं जा सकते। FTL में चले जाएंगे तो हमारी यहाँ गाड़ियां यहाँ बिल्ला कम हो जाएगी। और सूरत में भी इतना, मान लीजिए कि गुजरात में अगर हमको 250 गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है तो 250 गाड़ियां माल मतलब में रिटर्निंग में हमको चाहिए, चाहे कोलकाता से हो, चाहे फिर कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, चाहे साउथ से हो। लेकिन बम्बई से लेकर के अहमदाबाद तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, और उसमें कुछ ना कुछ माल आता रहता है, और वो गाड़ियां हमें काम आती है, और सीजन में भी काम आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि व्यापार अच्छा चले और रिटर्न गुड्स कम से कम आए, यही मतलब कहूंगा। धन्यवाद।
बिल्कुल 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 युवराज भाई। मनोज भाई, जिस तरह से ये रशिया यूक्रेन युद्ध की इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, कितना असर है उसका एक्सपोर्ट के चलते देखा जाए तो वैश्विक मार्केट की क्या स्थिति है ये युद्ध को लेकर के? देखो, इस युद्ध का हमारे एक्चुअल में कपड़ा मार्केट पर डायरेक्ट कोई इफेक्ट ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बाकी वो ऊपर से इस एक्सपोर्ट वगैरह में हो, लेकिन हमारे डायरेक्ट कपड़ा मार्केट के ऊपर लेकिन इस टाइप का कोई इफेक्ट हाँ, लेकिन युद्ध के कारण जो स्थिति, आर्थिक जो स्थिति बाकी देशों के अंदर जो अभी देखने को मिल रही है, अमेरिका जैसी कंट्री भी ये नादार होने की कगार पर है। अगले महीने तक उनका जो आउटस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह के जो इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, जो आर्थिक लेवल पर अगर हम देखें, जो वैश्विक स्तर पर मंदी चल रही है, उससे भी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा इंडस्ट्री को। बिल्कुल वही मंदी तो आज जिस हिसाब से मंदी है, मैं आपको पहले जब चालू किया मैंने आपको यही बताया ना कि भाई जो मंदी अभी है वर्तमान में, वो सब इसी इफेक्ट के ही चलते हैं ना। जो महंगाई बढ़ी है, समझो यूक्रेन युद्ध के चलते काफी आइटमों में महंगाई बढ़ी है, तो उसके चलते ये जो मंदी का असर सामने दिखाई दे रहा है। बाकी ये अगर कपड़ा मार्केट के ऊपर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, व्यापारी जो हमारे परचेजर है उनकी कैपेसिटी घटी है परचेजिंग की, तो उसका हमारे को इफेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है। और वो इस हिसाब से डायरेक्ट मैं ये नहीं मानता कि कोई हमारे यूक्रेन युद्ध के हिसाब से हमारे कोई कपड़ा मंडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बस परचेजिंग जो पावर हमारे सप्लाई कम हो गई तो उसके चलते हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिस तरह से रॉ मटेरियल वगैरह जो फॉरेन से इंपोर्ट होता है डाइंग के लिए और कई चीजों का, तो उससे उसके ऊपर कोई असर आई है? इंपोर्ट के अंदर हमारा जो पहले जो आता था माल वहां से, रशिया से और चाइना वगैरह से, उस पर कोई असर दिख रही है? इसका मैं इतना ज्यादा नहीं बता सकता, ये आपको प्रोसेस हाउस वाले बताएंगे इस चीज में। हम जो प्रोसेस हाउस के हैं ना वो बता सकते हैं कि इसका ऊपर उनका क्या है। जी 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 जी। मनोज भाई, एक आखिरी सवाल कि क्या 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 स्थिति आप आने वाले जो फेस्टिवल सीजन है उसको लेकर के देख रहे हैं? हमेशा जैसे 2 साल का हमारा ये कोरोना का जो माहौल गया है, उसके बाद की ये दूसरी फेस्टिवल सीजन आएगी। तो पिछली फेस्टिवल सीजन में तो इतना नहीं था क्योंकि कोरोना के बाद का मार्केट खुला था, तो थोड़ा बहुत धीमा रहा था और हर कोई समझ सकता है कि वो माहौल कुछ अलग था। लेकिन ये 1 साल के बाद ये दूसरी जो फेस्टिवल सीजन आ रही है, उसको लेकर के आप कितने उत्साहित दिख रहे हो? देखिए, अभी फेस्टिवल सीजन भी जो है ना हमारा थोड़ी लेट है। हमारी अब फेस्टिवल सीजन मिलेगी रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन इस साल जो है लेट है, तो उसके चलते अभी ये काफी 1-1.5 महीना करीब हम ये मानते हैं कि कपड़ा मार्केट में अभी मंदी रहने वाली है। अभी कोई भी व्यापारी जो परचेसिंग नहीं कर रहा, जो अभी युवराज भाई ने जैसे बताया, रियल में यही चीज हो रखी है, बाहर से माल वापस आ रहा है। व्यापारी भी अपना ये देख रहे हैं कि आगे सीजन नहीं है, तो एक बार जो सूरत का माल है, हम लोग 99% माल सूरत का उधार बेचते हैं। व्यापारियों को यही रहता है कि अब चलो एक बार वापस भेजो, नया कुछ मिलेगा, नया लेके आएंगे। तो ये नेचुरली सूरत के कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत बड़े नुकसान का विषय बनता है कि जो माल वापस आता है तो उसमें माल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और उसमें जो हमारी पैकिंग होती है वो भी खराब होती है। इसका भी हमारे को काफी नुकसान रहता है। और अभी वर्तमान में व्यापारी लोग जो है इसी चीज को सहन कर रहे हैं। सूरत का कपड़ा व्यापारी की माल वापस आ रहा है, सेल नहीं हो रही है, मंदी का माहौल है, इस बार सीजन जो है लेट है, तो इस पर 1-1.5 महीना इंतजार करना पड़ेगा व्यापारियों को। जी 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 मनोज भाई, मतलब ये कुल मिलाकर जिस तरह से मंदी के लिए जो जिम्मेदार इफेक्ट्स है उसको लेकर के अभी थोड़ी सी चिंता बढ़ा दी है व्यापारियों की, लेकिन आने वाले टाइम में स्थिति सुधर सकती है, ऐसी आशा इंडस्ट्री रख रही है। तो युवराज भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार, और मनोज भाई अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत अग्रवाल हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जो माहिती आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। તો આપણે જોયું કે જે રીતે હાલ અત્યારે વાત કરી રહ્યા હતા આપણે કે કપડા બજારની અંદર જે રીતની મંદીનો માહોલ અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે, આશાવાદ છે કપડા ઉદ્યોગકારો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો
કે આવનારી જે તહેવારોની સિઝન છે એની અંદર વાતાવરણ સુધરી શકે છે, પરંતુ એ આશા એ લોકો ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં રાખે છે કે જેનાથી ઉદ્યોગને ઓક્સિજન મળી શકે અને જે રીતે અત્યારે જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એ વખતે કવર થઈ શકે એમ છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે સિઝન કેવી રહેશે. તો આજે આપણા કાર્યક્રમમાં બસ આટલું. આવતીકાલે નવા વિષય સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.